Good morning, children. This is class 4, value education. And in the last video also, we were discussing chapter number 5, martyr of charity. Okay. So today, I have to take the second half part of this chapter, and I just want to revise the first part to make the story complete. In this lesson, we have read about a man whose name was Joseph Damien, who used to live in Belgium, that is in Europe, one of the countries in the Europe. And since his childhood, he had a desire to be a priest. And at the age of 19, he became a priest and started traveling as a missionary or God's messenger. So after that, we see one night when he was sleeping, he had seen a strange dream. He saw that there was a faraway land from his country, and there was lot of suffering. People were dying due to some terrible disease, and there was no one to help them and to read and to tell them about God's words during their last days. So the next day, very strange thing happened. A man from the land of Molokai came and informed that a strange disease has gripped the island of Molokai. Molokai is an island near America. That was a faraway place from his native land, Belgium. Okay, and he told Damien that people were suffering and they needed a priest to help them. And when he heard this, he at once decided to leave for Molokai to serve the people, to serve and help the people there. And when he reached there, first of all, he built a church, and he taught people how to pray to God. So after that, there were a lot of changes, and as well he was teaching the people about the God, and he was also teaching them how to pray to God also. And side by side, he was serving the poor and needy people, especially those who were suffering from that strange disease that was leprosy. Okay, a dangerous disease. But he loved them. He treated them and nursed them with complete love. Okay, and he spent about 10 years serving the lepers. Lepers means आपने देखा भी होगा, यू मस्ट हैव सीन लेप्रोसी कहते हैं कोढ़ की बीमारी की, जिसमें हाथ पैर की उंगलियां हड्डियां शरीर की गलने लगती हैं. अब इंसान बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो जाता है, अजीब सा सिचुएशन हो जाती है. एंड पीपल हेट दोज पीपल. यूजुअली ये होता है ओल्डर टाइम्स, यूजुअली पीपल डिस्कार्ड कर देते थे, उनको शहर से बाहर भगा देते थे ऐसे लोगों को, कि हमारे बीच में मत रहो, कि हमें ये बीमारी ना लगे. People used to keep them far away from them. Okay. Initially, it is a dangerous disease, and but Damien loved to serve those people, and he spent about 10 years serving those lepers. Lepers means the people who had this problem, who had this disease. तो मतलब कोढ़ी जिसको बोलते हैं, lepers means कोढ़ी, a person who is having this disease. Okay, so we have to start from here now. One day Damien went about his evening ritual of soaking his feet in boiling water. कुछ ऐसा शाम के समय उनको कुछ ऐसा रीति रस्म करनी होती थी जिसमें गर्म पानी में अपने पाँव को डुबोते थे. तो he could not feel the heat. He understood that he had contracted leprosy. और उन्होंने क्या महसूस किया जब उन्होंने गर्म पानी में अपना पैर डाला? He felt that he was not feeling the heat of the water. Means his skin had no sensitivity. कोई उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि चाहे उसको. दिस इज़ अ साइन ऑफ द लेप्रोसी चिल्ड्रन, बिकॉज अगर ये बीमारी होती है तो स्किन में जो सेंसिटिवनेस होता है, जो जैसे कि उस पर नोचा जाए या मारा जाए या कोई गर्म चीज़ लगे, तो वो बिल्कुल फील नहीं होता कि कुछ भी हमारी गलत चीज़ हमारी बॉडी को टच कर रही है. सो ही एट वंस अंडरस्टूड दैट. उनके पैरों में जो उन्होंने फील किया कि उन्हें गर्म पानी जो है वो गर्म लग ही नहीं रहा था. सो ही अंडरस्टूड दैट कि उनकी स्किन में भी वो लेप्रोसी डिजीज़ आ गई है इनकी बॉडी में. ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द चर्च एंड स्टार्टेड रिंगिंग द बेल लाउडली. एवरीबडी केम रशिंग टू द चर्च टू सी व्हाट द मैटर वॉज. नेक्स्ट डे उन्होंने क्या करा, वो चर्च में गए. उन्होंने चर्च की जो
बेल थी, घंटी थी, उसको ज़ोर से बजाना शुरू किया, जस्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल। सो एवरीबडी केम रशिंग टू द चर्च। हर कोई जो है वो दौड़ता हुआ आया कि क्या बात है, चर्च की घंटी बहुत ज़ोर से बज रही है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग और समथिंग द father Damien is wants to have a meeting, he wants to meet us, so they all came running. Okay, then Damien, when they were gathered there, जब वो सब जमा हो गए तो डेमियन ने उनको एड्रेस करते हुए बताया, माई डियर फ्रेंड्स, आई हैव कॉन्ट्रैक्टेड लेप्रोसी, नाउ आई एम वन ऑफ यू, टुडे आई फील टोटली ए पार्ट ऑफ अलोकई। उन्होंने लोगों को बताया कि मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे माई डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने भी इस बीमारी को जो तुम लोगों को है उसको पकड़ लिया है, यानी मुझे भी ये बीमारी हो गई है और मैं अब तुम लोगों जैसा ही एक हूँ, तुम लोगों के बीच में एक हूँ, तुम्हारे जैसा ही हूँ, और मैं पूरी तरह से अब अपने को मलोकोई का एक पार्ट समझता हूँ। ठीक है। मैनी पीपल स्टार्टेड क्राइंग व्हेन दे हर्ड द सैड न्यूज़। और बहुत से लोगों ने जब ये सुना तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। दे फेल्ट बैड एंड सैड अबाउट फादर डेमियन। ओके, दे इंसिस्टेड हिम टू लीव देम एंड गो बैक टू गेट ट्रीटमेंट। उन्होंने ये कहा भी कि उन पर जोर डाला कि यू गो बैक, जहाँ से आप आए हो, या कहीं भी किसी गो टू सम गुड कंट्री एंड गेट द ट्रीटमेंट, आप अपना इलाज करा लो, अपने को ठीक करा लो। बट ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया। ही सेड दिस इज़ माई लैंड एंड यू आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी मैं यहीं रहूँगा और आप मेरे भाई और बहन हो। डेमियन केप्ट ऑन वर्किंग फॉर द पीपल टिल हिज डेथ। और डेमियन ने जो था उनके लिए अपने मरते दम तक उनके लिए कार्य करता रहा, काम करता रहा, उनकी सेवा करता रहा। फॉर हिज लव फॉर पीपल एंड ह्यूमैनिटी, उसने इंसानियत से, इंसानों से बहुत प्रेम किया और बहुत प्रेम किया और उनकी सेवा करी। इस वजह से ही इज़ पॉपुलरली नोन एज फादर डेमियन और द मार्टर ऑफ चैरिटी। इसलिए वो फादर डेमियन के नाम से फेमस हुआ और उनको मार्टर ऑफ चैरिटी भी कहा जाता था। Look here, he is wearing this he is looking here like a fathers, जैसे ये वाइट कपड़े पहनते हैं उस तरह से, and there is a cross in his neck. Okay, and he is treating the leprosy patient. लेप्रोसी के पैचेस उसके स्किन में बने हुए, यू कैन सी। ये खाल जो होती है, स्किन जो होती है वो गल के निकल जाती है और अंग जो होते हैं शरीर के वो ख़राब हो जाते हैं, and it is a very bad disease. Okay, now we come to the next page. We should see the moral also. Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. क्या मतलब इसका है कि अपने को एक सफल इंसान बनाने से बेहतर है कि आप अपने को मूल्यवान बनाएं। ठीक है, मूल्य हो आपका, मूल्य मीन्स कि लोगों के लिए आप काम आए। ठीक है, वैल्यूज़ वी लर्न। अब क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे, फादर डेमियन एंड मैनी अदर ग्रेट पीपल सेट एन एग्जाम्पल फॉर अस टू फॉलो। फादर डेमियन और बहुत से बड़े लोगों ने दुनिया के हम लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखा है जिसे हम फॉलो करें। एज फादर डेमियन हैड गिवन हिज लाइफ फॉर द लेपर्स, सर्विंग देम, देयर लाइफ टीचेस अस दैट वी शुड थैंक गॉड फॉर बीइंग एबल एंड फिट। और उनकी लाइफ हमें ये सिखाती है कि हमें ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि जब हम दूसरे लोगों को परेशान, बीमार और बुरी हालत में, फिज़िकली हैंडीकैप्ड या फिज़िकली बीमारी से घिरा हुआ देखें तो हमें ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें लायकवर बनाया, फिट बनाया, यानी कि हम स्वस्थ हैं, फिट हैं। तो इस बात के लिए हमें ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। वी शुड ऑल्सो थैंक गॉड फॉर मैनी अदर ब्लेसिंग्स वी हैव। और हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो उसने बहुत सी दूसरी चीज़ें हमें अच्छी दी हैं, दूसरे बहुत सी ब्लेसिंग्स दी हैं, आशीषें दी हैं, उसके लिए हमें हमेशा उसका धन्यवाद करना चाहिए। वी शुड एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू गॉड बाय हेल्पिंग दोज हु आर पुअर एंड नीडी। और हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ये करते हुए क्या करना चाहिए, उसकी कृतज्ञता अपनी शो करने के लिए कि पुअर और नीडी, ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करें। ठीक है, तो ईश्वर के प्रति हम कृतज्ञता जाहिर करेंगे, यानी उसको थैंक्स बोलेंगे, कृतज्ञ ओब्लाइज्ड होंगे। ठीक है, द बेस्ट वे टू शो गॉड दैट वी लव हिम इज़ टू लव एंड सर्व फेलो ह्यूमन बींग्स। और ईश्वर के प्रति अपना प्रेम दिखाने का सबसे अच्छा ये तरीका है
कि हम अपने साथ के इंसानों को प्रेम करें और उनकी सेवा करें. So children, this is the end of this chapter. Okay, today we have finished this chapter, and you just have a look at this and see the worksheet also, which is with this video. Okay, thank you.